Hello everyone, let me adjust my mic and my camera and then we will start today's session, part 4, CVT PG important concepts. We will start. We have very important session today because we will talk about the chapter consciousness. At least 3 questions will be there. Maybe more than that, maybe less than that, I'm not sure, but 3 questions will be there. So that's why you have to study a lot. I hope you can see it clearly. I hope everything is visible to you. I'm not writing anything right now, but I hope the screen is visible to you and I hope I am audible to you. And we will start a very lengthy session today about the chapter consciousness. Yes, it is important. Every unit in your CVT psychology is important. We'll talk about consciousness. And then make sure that I complete this under 30 minutes because uske baad video gets boring and not easy to understand. So make sure I will understand this topic. I will make you understand this topic under 30 minutes. Now let's talk about our consciousness. What is consciousness? Consciousness is awareness. You have to know. Consciousness is awareness. Awareness. Consciousness is awareness, right? Now, when I talk about this chapter, I am assuming that you all are from psychology background and it is very important for you to know कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बहुत रिविजन करके आए हुए हैं, जिनको एक लास्ट मिनट रिविजन देखना है, उसके बाद ये चैप्टर की रिविजन कभी नहीं देखनी है. इफ़ यू आर न्यू, डिटेल में तो जाना पड़ेगा, बट मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी. मैं सिर्फ उतनी ही डिटेल में जाऊँगी जो एग्जाम के लिए हो. नॉट फ्रेश स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इनटू CVT PG साइकोलॉजी, बिकॉज 15 डेज भी नहीं है. 15 days भी नहीं है. Let's talk about it, okay? Now when I talk about the chapter consciousness, you have to listen to me because I will talk about so many things. I have put my phone on flight mode because मुझे पता है कॉल आएगा तो कट जाएगा. मैं एडिट करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एडिट नहीं कर सकती हूँ. वीडियो कट जाएगा, कॉल आएगा, क्योंकि मुझे आते रहते कॉल, इसलिए मैंने फ्लाइट मोड पे रखा है. सी माई डेडिकेशन एंड फोकस. Now, let's talk about consciousness. Now, consciousness is awareness. Consciousness is awareness. When you are aware about the things around you, you have consciousness. When I'm aware that I want to teach you, when I'm aware that I have to explain you concepts, this is my consciousness. Now, in your syllabus, it is not that important, but padna hai. That's why we will talk about 2 kinds of consciousness, waking and altered consciousness. Okay, waking consciousness is organized. Here in this waking consciousness, you are fully aware, you are organized, and you are clear. Whereas altered consciousness is altered. Very easy, it's disorganized. It's disorganized. Fuzzy and not aware दैट मच. अवेयरनेस तो होगी, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें, उसके टाइप्स के बारे में बात करें, तो अवेयरनेस तो होगी, पर उतनी अवेयरनेस नहीं होगी जितनी वेकिंग में होगी. वेकिंग ऑर्गेनाइज फुली अवेयर होते हैं वेकिंग कॉन्शियसनेस में. तो वेकिंग कॉन्शियसनेस में फुली अवेयर होते हैं, ऑल्टर्ड में फुली नहीं होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, जबकि वेकिंग में पूरे ऑर्गेनाइज होते हैं. तो वेकिंग एंड ऑल्टर्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट 2 kinds of thought processes. Okay, this is not that important, so I'm not emphasizing on this a lot. We will talk about many more important topics, and that's why I put focus. And we will talk about now 2 kinds of thought processes. You have 2 kinds of thought processes. You have control thought process and automatic thought process. Let me increase my brightness. Just give me a second. Okay, much better. Controlled. What is controlled thought process? A controlled thought process is a process where you are putting full attention towards something, your full attention. For an example, when you study CVT PG. Best example, when you make notes consciously. And conscious भी इतना नहीं कि normal वाला. Altered conscious नहीं कि बस ठीक है. You should have waking consciousness. I'll use those terms so that you understand. And this is control, where you have full awareness, full attention towards something. You're very serious about this. I am assuming that's why you're watching this video late at night. Please, coffee ले लो, snacks ले लो. लंबी वीडियो होगी, I'm telling you. 30 minutes से थोड़ी ज़्यादा तो होगी. मैंने बोला less than 30 minutes, थोड़ी ज़्यादा तो उससे होगी. ठीक है, controlled. Automatic में आप ब्रश करते हो अपने दांतों को, ब्रश करते हो, यू ब्रश योर टीथ, यू वॉश योर फेस,
यू ड्राइव कार एक्सपर्ट होके, जैसे आपके पापा ड्राइव करते हैं कार, तो वो ऑटोमेटिक होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा अटेंशन उसकी तरफ नहीं देनी पड़ती। जबकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल बी इन कंट्रोल। धीरे धीरे 1 साल बाद, 2 साल बाद, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक पे आते हो। इसमें प्रैक्टिस होती है। जो चीज़ आप बोलेंगे, जो आपको पता है, ब्रश टीथ में तो क्यों ही आप कॉन्शियस हो गए, क्यों ही ध्यान दोगे। अब अगर दांत अपने ब्रश कर रहे हो, फेस धो रहे हो, रोज़ की आदत है, उस पर क्यों आप कंट्रोल होगे। लेट्स टॉक अबाउट स्लीप नाउ। लेट्स टॉक अबाउट स्लीप नाउ। कंट्रोल ऑटोमेटिक समझ आ गया। आई होप कुछ नहीं आया, लेट मी नो, बट वी विल टॉक अबाउट स्लीप। वी हैव स्लीप वेक साइकिल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। In sleep, we have sleep wake up cycle, sleep wake cycle. We have sleep wake cycle. In your sleep wake cycle, you have two important things to remember. Not two, more than two. More than two important things. So अगर आपको थोड़ी भी साइकोलॉजी की नॉलेज हो, तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है। ठीक है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डस्टर को हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज हो, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज हो सर्केडियन रिदम की, आपको पता होगा कि हमारी सर्केडियन रिदम क्यों होती है। हमारी बॉडी में इसलिए होती है ताकि हम उठ पाएँ, हम उसका ध्यान रखें, हम टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। बट अभी तो बिकॉज वी आर जेन ज़ीज, वी वॉच लेट मूवीज़, लेट एट नाइट मूवीज़, वी लेट dinners, we do late dinners, we do a lot of things late at night which we're not supposed to do. We're not supposed to sleep after 1 a.m. We are supposed to sleep before 12 a.m. But because we are Gen Zs, we sleep after 1 a.m. which not only ruins your circadian rhythm, जो बेचारी बनी है, जो तुम्हें उठाने का काम बना है उसका, कितने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे सोना है, एक साइकिल होता है, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तभी अगर हम 12 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो ये जो है एक रूल जो हमारा बन चुका है जेनजीज का, इट इज़ रूइनिंग अस, इट इज़ डेफिनेटली रूइनिंग अस, डेफिनेटली रूइनिंग अस। एंड दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना, कभी हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं, मेंशन कर देते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से पता होता है कि जो सर्केडियन रिदम है वो इम्बैलेंस हो चुकी है तुम्हारी। इसमें ये 24 आवर्स की आपकी स्लीप वेकअप साइकिल होती है। ठीक है, एंड हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्केडियन रिदम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है लाइट से। ठीक है, तो इफ़ यू हैव मेलाटोनिन पढ़ा है हमने, अगर आपने न्यूरोट्रांसमीटर का वीडियो नहीं देखा है तो यू शुड वॉच। जहाँ पे मैंने बात की थी मेलाटोनिन, मेलाटोनिन कितनी जल्दी अफेक्ट हो जाता है आपकी कम लाइट होने से। और अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो नींद नहीं आती। अब 2-2 बजे तक लाइट ऑन करके रखोगे तो मेलाटोनिन कैसे रिलीज़ होगा, वो हो ही नहीं पाएगा रिलीज़। नाउ जो आपकी सर्केडियन रिदम है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। सर्केडियन रिदम गेट्स इन्फ्लुएंस बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, absence of light. Now here you have to understand the circadian rhythm is affected by presence of light or absence of light. Presence होगी लाइट की, स्लीपी नहीं फील करोगे। एब्सेंस होगी लाइट की तो आप स्लीपी फील करोगे। ये सारा जो लिंक है आपके इस न्यूरोट्रांसमीटर पे जाता है मेलाटोनिन। इट इज ऑल रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल इन एब्सेंस ऑफ लाइट यू विल फील स्लीपी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यू विल फील अलर्ट। एंड क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो फिर ऑफ कोर्स यू विल फील अलर्ट। एंड दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, I talked about this, it is very very important. Watch my neurotransmitter video जहाँ पे मैंने बहुत ही क्विकली सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिस्कस किया है। Now we'll talk about the controller. Now when you play games, you know it is a very good Gen Z example. When you play games, आपके पास controller होता है. That is why you are able to control that game. वो आगे जाएगा, वो पीछे जाएगा। Hypothalamus is very important for sleep. It is very important for thirst, for hunger, for body temperature. इसकी भी फंक्शन में बात कर ली, तो अगर नहीं देखे थे तो इसके फंक्शन यू कैन अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लीप, रेगुलेटिंग योर बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ वेरी गुड फॉर बैलेंस। बेसिकली हाइपोथैलेमस का रोल किस में होता है? बैलेंस में होता है। हाइपोथैलेमस इज इनएविटेबल फॉर बैलेंस। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस। होम्योस्टेसिस का नाम सुना होगा, ठीक है। इट मीन्स व्हेन यू हैव टू मेक अ बैलेंस, व्हेन यू फील हंग्री यू ईट, नॉट जस्ट ईट पिज्ज़ा, बट कुछ भी मिल जाए वो खाना। व्हेन यू फील थर्स्टी यू डोंट लुक फॉर डाइट कोक, यू लुक फॉर वाटर। ठीक है, वो अलग होगी, वो अलग होगा, वो आपकी नीड होगी, ड्राइव नहीं होगी, या आपकी क्रेविंग्स होंगी।
इस द ड्राइव्स होते हैं where you want water because water is your thirst, you want something, कुछ भी मिल जाए, that is your hunger. Sleep, कहीं भी सो जाओ, sleep. Thalamus is the controller. Thalamus is hypothalamus, sorry, hypothalamus is the controller. क्योंकि कई बार मेरी आदत हो जाती है hypothalamus बोलने की, hypothalamus को, तो I'm really sorry for that. So here you can see that hypothalamus is the controller. हाइपोथैलेमस में आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है जो बहुत अंदर होता है. तो अगर आप हाइपोथैलेमस का डायग्राम देखो ब्रेन में, यू वुड नोटिस एक बहुत ही अंदर एक छोटा सा डीप घुसा हुआ एक पार्ट है हाइपोथैलेमस का, विच वी कॉल SCN, विच वी कॉल SCN. अभी इतना समझो. दिस इज माई कॉफी. आई फील स्लीपी समटाइम्स, दैट्स व्हाई आई हैव कॉफी हियर विद मी. अभी ये छोड़ दो, SCN छोड़ दो. I'm kind of breathless now because I really want to cover this and I also want you to understand. इसलिए मैं जल्दी भागूंगी नहीं. First, understand this topic. I'll also discuss doubts that most people had when they were starting this. So, the doubt was कि when you say hypothalamus, when you talk about the role of hypothalamus, you say that it's a controller. This is one doubt, that where does circadian rhythm locate? What is the location of circadian rhythm? There is no location. एक रिदम है बॉडी की, जैसे बॉडी काम करती है, ठीक है. और ये पूछोगे कि हाइपोथैलेमस हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब ये थोड़ी बोलो कि स्लीप कहाँ लाया करती है. एक पार्ट है, ठीक है, जो कहीं ऑर्गन नहीं है, जो एक पार्ट नहीं है फिजिकल, बट एक रिदम है, बॉडी ऐसे चलती है. This was a question. The second question was about SCN that we will discuss. And here you have to understand, अभी तक समझो 24 आवर की हमारी स्लीप एक साइकिल होती है. मेलाटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज फॉर स्लीप. प्रेजेंस ऑफ लाइट में नहीं होता है क्योंकि रिलीज ही कैसे होगा. एब्सेंस ऑफ लाइट में इट रिलीजेस. हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोल ऑफ पूरे सर्केडियम और स्लीप एक साइकिल का, क्योंकि स्लीप और सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोलर होता है. नाउ we'll talk about SCN, which is super chiasmatic nucleus. एक बार इसको देख लो, इसका मतलब क्या होता है. सुपर chiasmatic nucleus is very very important because it is your internal clock. It is your internal clock. I'll explain you. अभी full form can come to your exam. I hope you understood the process above. SCN जिसके ऊपर लिखा है, I hope you understood everything. Let's talk about SCN. SCN क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अलग से सब कुछ एरेज करके विल स्टडी. Okay. Shall we start? Now this is your sensitive to light changes. It's very sensitive to light changes. ठीक है, it is very sensitive to light changes. And it's not only sensitive to light changes but also it is very important because अगर आपका डे लाइट है, ठीक है, आपकी डे लाइट है, तो आपका जो है SCN जो होता है हाइपोथैलेमस में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप के लिए, वो फेड हो जाएगा. यू विल बी लाइक क्यों होगा? क्योंकि अभी तो डिस्कस किया, मेलाटोनिन बनेगा ही नहीं अगर दिन होगा तो. दैट्स व्हाई वी डिस्कस. आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन. डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन? आई होप नॉट. Daylight में it will fade because it's sensitive to light changes. It's sensitive to light changes, right? I'm really sorry. My pen is not working. Give me a minute, please. Okay. Now, yeah, we were talking about, it's sensitive to light changes, and that's why when you have daylight, sunlight, दिन का time, it will fade. And when it will fade, what will happen? Melatonin will not be there anymore. Night के time पे it will activate. And melatonin will release. It's that easy. And the best part, the best question that comes to your exam, I'll frame that question first. Understand this thing. I'll frame
दैट क्वेश्चन। एंड देयर आर थ्योरी जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने पूरा पढ़ा, सॉरी, जो पूरा पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा स्लीप वेक साइकिल, ये सब कुछ ये आपकी बायोलॉजिकल थ्योरी थी। ये सारी आपकी क्या थी? बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ स्लीप। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ स्लीप, ये सारी आपकी बायोलॉजिकल पूरी जो थी वो बायोलॉजिकल थ्योरी थी नींद की, स्लीप की। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, हमने बायोलॉजिकल थ्योरी से स्टार्ट किया बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट एंड यही आता है शायद ज़्यादा एग्जाम। एम फॉर मेलाटोनिन। ओके, नाउ मेलाटोनिन जो हम इतनी देर से ये मेन कैरेक्टर है क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ चलता है, और हाइपोथैलेमस तो कंट्रोलर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोलर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर वो है, ये आपका मेन कैरेक्टर मान लो। ठीक है, अब ये पीनल ग्लैंड रिलीज करता है। ग्लैंड्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी भी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर, आई डोंट कैसे होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, वो बायोसाइकोलॉजी का पार्ट है, मैं बायोसाइकोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखना है कि बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं इंक्लूडिंग पिट्यूटरी एंड पीनल। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड प्लीज। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड, ये दोनों पी से स्टार्ट होते हैं, बट पीनल आपका मेलाटोनिन को इस चैप्टर में रिलीज करता है। ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जेट लैग्स। व्हाट आर जेट लैग्स? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, ठीक है, एक मेरे हिसाब से तो ये एग्जांपल बेस्ट होगा कि इफ आई एम गोइंग टू यूएस और यहाँ पे बजे 9 AM, यूएस में बजे 9 AM, और मैं इंडिया से ट्रैवल कर रही हूँ और इंडिया में बजे 9 PM। तो मैं वहाँ पे गई और मुझे पता लगा ये तो दिन है, मैं तो रात को गई थी, पर यहाँ पे तो इतना दिन है, मैं तो रात को बैठी थी और ये तो इतना दिन हो चुका है। ठीक है, और मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं एयरप्लेन से तो बाहर नहीं निकल सकती। मेरे को लगा मेरे यहाँ पे तो, मेरी कंट्री में तो रात है, इनकी कंट्री में तो 9 बजे हुए हैं। मैं जैसे ही लैंड करी मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया, टाइम ही इतना चेंज हो गया, मैं सोऊं कैसे, मेरे तो काम है, मैं तो किसी काम के लिए आई थी। अब मुझे नींद भी नहीं मिली, कहाँ ही एयरप्लेन में नींद कैसे आती, इतनी अनकंफर्टेबल होता है, यू कांट स्लीप इन एन एयरप्लेन। सो नाउ यू हैव जेट लैग, you have the time difference, right? And that's why you get confused, and this is your jet lags. Mismatch supplements of melatonin. Mismatch supplements of melatonin. अब मैंने क्या बोल रही हूँ, मैं सप्लीमेंट भी बोल रही हूँ, मिसमैच भी बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, इसका मतलब ये है कि मिसमैच हो जाता है हमारा मेलाटोनिन का मिसमैच हो जाता है और लोग सप्लीमेंट लेते हैं। नींद नहीं आएगी, अजीब लगेगा, मेरी कंट्री में रात है, इनकी कंट्री में दिन है, तो पीपल टेक सप्लीमेंट्स। तो मैं तभी बोल रही थी, एक साथ ही मैंने बोल दिया मिसमैच सप्लीमेंट्स ऑफ मेलाटोनिन, दे टेक अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स। कमीज़ भी आती है, मेलाटोनिन कमीज़ भी आती है, जो लोगों को नींद पूरी नहीं होती उनको दिक्कत आती है, उसमें गमीज़ भी आती हैं। Easy to understand? Okay. Now we'll start with second theory. This is biological. This whole is biological. I'm assuming. I thought my whiteboard is about to come off from the wall. I was like, अब मेरी पढ़ाई रुक जाएगी क्योंकि ये टूट जाएगा. I was worried about it. That's why I was looking ऊपर. But ठीक है. I hope it is stable now. I'm sorry for the noise जो whiteboard से कभी-कभी आती है. Adaptive पढ़ लेते हैं, ठीक है? Adaptive theory होती है, अभी biological पढ़ा. Second we'll just study adaptive. Adaptive theory. What is adaptive theory? It is a very important theory, ठीक है, जिसमें आप adapt करते हो. Adapt करते हो. Animals जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस जो होते हैं, इनका स्लीप पैटर्न ना इवॉल्व हो गया है. ये थ्योरी क्या कहती है? स्लीप पैटर्न हमारा इवॉल्व हो गया है. हमारे रात में ना प्रेडेटर्स होते थे, ठीक है, प्रेडेटर्स होते थे, जो भी आपके मॉन्स्टर्स कह लो, वाइल्ड एनिमल्स होते थे, ठीक है, प्रेडेटर्स, ठीक है.
इसमें हमारे एनिमल्स हो सकते हैं प्रेडिटर में, ठीक है। स्लीप पैटर्न बना है, हमारे प्रेडिटर्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो रात को आते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं, हम इन ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं और हम रात को इसलिए सोते हैं ताकि हम पूरा दिन एक्टिव रहें, ठीक है, पूरा दिन एक्टिव रहें और रात को सोएं, ठीक है। एडाप्टिव थ्योरी कहती है कि हम पूरा दिन काम करेंगे और रात को सोएंगे, क्योंकि रात को प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज एडाप्टिव थ्योरी, ठीक है। तो स्लीप हमें एक्टिव रखती है। अगर हम प्रेडेटर से पूरा दिन सोते रहेंगे, रात को प्रेडेटर आएंगे और हम बाहर होंगे और हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हम अपने आप को सेव नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए ये थ्योरी थोड़ी सेंसलेस भी है, बट नहीं भी है, ठीक है। उस टाइम पे ऐसे ही होता होगा, बहुत सारे और भी दुश्मन होते होंगे, ठीक है। उनसे बचने के लिए दिन में काम करो, रात को छुप के सो जाओ, प्रेडेटर से बच जाओ, क्योंकि तुम्हें सर्वाइव करना है, दैट इज। और एनिमल ह्यूमन्स दोनों करते हैं। स्लीप पैटर्न इवॉल्व हुआ है हमारा, ठीक है। हमारा इवॉल्व हुआ है, हमारा तब से चला आ रहा है बेसिकली, इतनी ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए तुम्हें। फिर आती है रेस्टोरेटिव, आती है रेस्टोरेटिव। अभी ये क्या होती है, ये भी टफ होती है क्या, डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी अंडरस्टैंड करने में। ये तो ये कहती है कि हमारी बॉडी को रिपेयर करना होता है, हमारी बॉडी रिपेयर चाहती है उसकी सेलुलर ग्रोथ के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलुलर जो डैमेज होता है, पूरा दिन जो स्ट्रेस होता है, पूरा दिन जो स्ट्रेस होता है, उससे रिपेयर होने के लिए रेस्टोरेटिव। ये आपकी पुरानी हिस्टोरिकल थ्योरी नहीं है, this is a new theory, this is a new theory which says that you have to repair your body, and in order to get your body repaired, in order to repair those damaged cells that happens throughout the day, because you take a lot of stress, because you have a lot of stress for your exams, for your work, for your relationships, you need sleep to get repaired. And yes, it is very different from other theories we have been studying, right? हमारे physical changes भी होते हैं ब्रेन में when we sleep, physical changes होते हैं ब्रेन में when we sleep, in your brain when we sleep. That is very very important, right? And then it says that forming memories, अगर आपको आज पूरा दिन you have been studying to form memories, to revise those things, and that's why when I say that you have to sleep a lot before your CUET exam or any important exam, sleep a lot, study बाकी के जितने दिन थे उसमें तुमने स्टडी नहीं किया, लास्ट दिन में स्टडिंग, लास्ट दिन में तो जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो याद नहीं रहेगा कुछ। अगर तुम्हें 15 दिन मिले, 15 दिन पूरा पढ़ो, 15 दिन पूरा अच्छे से पढ़ो, और जो अब का जो दिन है 16th को, जो दिन है जब एग्ज़ाम है 16 को, उस दिन उसके एक दिन पहले आराम से रेस्ट करो, कुछ मत पढ़ो, थोड़ा बहुत रिवाइज करो, बट आराम से रेस्ट करो, बिकॉज स्लीप विल गिव यू मेमोरीज। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरीज, बिकॉज स्लीप फॉर्म्स मेमोरीज, फॉर्म्स मेमोरी। दैट्स वाई पूरा पढ़ो, बहुत दिन थे तो एक दिन जब एग्ज़ाम नहीं है उसके एक दिन पहले, जब एग्ज़ाम होने वाला उसके एक दिन पहले, जब तुमको लगता तुम कुछ नहीं पढ़ा, तब तुम इतनी जल्दी मगअप करने लग जाते हो, तो कर लो, तुम्हें लगेगा तुम्हें बहुत कुछ आ गया कि दिन में तुम पहले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम एग्ज़ाम में जाओगे एंड यू विल बी ब्लैंक बिकॉज यू डू नॉट स्लीप, यू वर स्लीप डिप्राइव्ड, मेमोरीज विल नॉट बी देयर एनी मोर। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अटेंशन के लिए ऑफकोर्स प्रॉब्लम कंसंट्रेशन में कब आती है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी स्लीप डिप्रीवेशन हो, जब आप स्लीप डिप्राइव्ड हो। स्लीप डिप्राइव्ड पीपल हैव प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग, फोकसिंग, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग अगैन। एंड ट्रेम्बलिंग भी होती है, बहुत ट्रेम्बल करोगे तुम, देखना जब तुम नहीं सोओगे तुम्हें लगेगा यार मेरी बॉडी को ठंड ज़्यादा लग रही है, डिस्कम्फर्ट है, हर तरीके का डिस्कम्फर्ट तभी आएगा जब तुम नहीं सोओगे अच्छे से, तभी सोना इंपॉर्टेंट है। नाउ स्लीप स्टेजेस की हम बात करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। रेस्टोरेटिव इज़ फॉर रिपेयर, एडाप्टिव एनिमल्स सोते थे और रात को प्रेडेटर से बचते थे, दे
escape. They have this sleep pattern. It has something evolutionary in it. Then you have biological, which is of course हमारा hypothalamus. अब मैं उसके बारे में और discuss नहीं करूँगी. And now we talk about sleep stages. Now we have stages, right? Shall we talk about those stages or should we take a break? I don't think so. We should take a break. अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है. Okay, I think I will make a short video, but it doesn't mean that we should stop studying, right? It doesn't mean that we should stop studying. Sleep stages. Now we have sleep stages. Now if I talk about sleep stages, we have REM sleep, we have non-REM sleep. In order to understand non-REM, we have to understand NREM. In order to understand NREM, non-rapid eye movement, we will have to understand rapid eye movement, REM sleep. Okay? REM sleep. अच्छा, imagine करो तुम्हें बहुत सारे dreams आते हैं. You have a lot of dreams. Okay? And you're active. You do not have a deep sleep. So I think it happens before a stressful situation, like before your exams, it might happen to you. Or during stress, maybe a relationship stress. Anything. जब तुम उठते हो तो ऐसा लगता है तुम सोए नहीं. That is all because of NREM sleep, because it is psychologically active. Rapid eye movement. No deep sleep. ऐसे होता है. And most people have NREM in their lives. Most people. Without this, your sleep stages cannot be fulfilled. Your brain is active. You have dreams. You move your eyelids also. Eyelids भी मूव होती हैं, ठीक है. ऐसा लगता है ड्रीम ही. अगर तुम किसी बंदे को NREM स्लीप पे देखोगे तो ऐसा लगेगा उसके आइज जो होती हैं, eyelids जो होती हैं, वो मूव कर रही हैं. इफ़ यू लुक एट दैट पर्सन, बिकॉज उसे इतने सारे ड्रीम्स आते हैं, उसकी स्लीप पूरी होगी नहीं, और तुम उठाओगे तो उठ भी जाएगा शायद. उसको अजीब सा लगेगा, उसको डिस्कम्फर्ट लगेगा, उसकी डीप स्लीप नहीं होगी, उसको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे. दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट. ड्रीम्स आएंगे. और डिटेल में आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड यू, but right now there is very less time. Non-rapid eye movement sleep, that is your NREM, which means it is totally opposite than REM sleep, which is non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement. Let me apply my lip gloss. तब तक पढ़ो. Let me apply my lip gloss. Okay, let's talk about non-rapid eye movement. Okay, I could not find my lip gloss, so yes, lipstick works. Now here, no dreams. Deep sleep. Okay, and give me a second. Here body is free to move. Not free to move, sorry. Not free to move. Here body is not free to move. अब बोलोगे क्यों? इधर मूव हो सकती है, इधर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डीप स्लीप है, बंदा मूव नहीं होगा, बहुत मुश्किल से उठ पाएगा. तो नॉट फ्री टू मूव, हेयर फ्री टू मूव. ठीक है, नॉट फ्री टू मूव. आई एम सॉरी. I've been studying for a very long time. I've been trying to explain you this for a very long time. इससे कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है. I'm really sorry for that. But this is not free to move. Free to move. इधर आपका मूवमेंट नहीं होता, रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता. आईलिड्स, फनी ड्राइंग, मूव नहीं करती हैं इसमें, ठीक है. Note it down if you want, and we'll move to another topic, which is all waves. Yes, it is gonna be a long session, but it doesn't matter because every session is important. What will I talk about here? I will talk about EEG. EEG. EEG is electroencephalography.
Electroencephalogram, the longest word in English language. Oh my god. But इतना अलग सा word है कि in MCQs you will be able to remember. There are a lot of other things जो इसी से मिल रहा है. EEG के अलावा एक और भी ECB I think. I'm not sure. Don't listen to me right now. But I think अलग सा word है. Options में समझ आ जाएगा, ठीक है? You will not get confused. Options में आएगा इसकी full form तो अलग से समझ आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए electroencephalogram is your EEG and you have lot of waves, right? इसी से हमें पता लगता है हम स्लीप में कैसे सोते हैं, कौन सी वेव होती है, ठीक है? किस वेव में हमारी कौन सी स्लीप होती है, उससे हम स्टेजेस भी पता कर सकते हैं, और ये EEG, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये क्या बताता है कि वेव्स कौन सी हैं, ठीक है? ये वेव्स को देखने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको पहले देखते हैं, इसके पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, फिर हम आते हैं स्टेजेस पे स्लीप की, ठीक है? और हम देखते हैं कौन सी स्टेज में कौन सी वेव्स हैं, वो इसी से पता लगती है, EEG से. वेयर आई एम फोकसिंग ऑन द स्क्रीन, वेट मेंट आउट ऑफ फोकस चला गया है, जस्ट होल्ड ऑन. अब तो आउट ऑफ फोकस नहीं है ना? Okay, I thought it's out of focus. I'm really sorry. Now we will talk about beta waves. पहले हम alpha wave से शुरू करते हैं. We'll talk about alpha wave first. ठीक है, ये बीटा से ही कर लेते हैं. Doesn't really matter. कोई सीक्वेंस नहीं है. We have beta waves. If it goes out of focus, I want you to tell me. I think it is going out of focus. I'm really confused. Just give me a second. Okay, beta waves. Beta waves क्या होती हैं, ठीक है? मेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अलर्टनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ये ऐसी वेव्स होती हैं, अगर आप अलर्ट हो ना तो ये आपकी बॉडी में दिखेंगी. ये EEG के थ्रू आपको दिख सकते हैं कि आप बहुत अलर्ट हो, राइट? सो फॉर योर अलर्टनेस यू हैव बीटा वेव्स फॉर योर अलर्टनेस. और ये ऐसी होती हैं, दे लुक लाइक दिस, ठीक है? इसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. सेकंड हमारा होता है अल्फा वेव. सेकंड हमारा अल्फा वेव होता है, दे रिसेंबल लाइक दिस. आई थिंक मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट ये क्यों होती है? अल्फा वेव्स की होती है रिलैक्सेशन के लिए होती है. आप जब पूरे अलर्ट नहीं होते, आप जब रिलैक्स होते हो, व्हेन यू आर ड्राउजी, जैसे कभी कभी योर डैड व्हेन ही इज़ वर्किंग, और नॉट योर डैड, एनीवन हु इज़ वर्किंग एंड दे फील स्लीपी. Anyone who is working and then they feel sleepy, they will be in the alpha wave. They will not be fully sleepy, but they will be drowsy. They will be in alpha state. So here you are relaxed. Here, ठीक है? You are drowsy, but you are like not very sleepy and not uncomfortably sleepy, or just like ठीक है, relaxed है अभी. That is your alpha waves, right? That is your alpha waves. Now what are इट मेक्स यू काम ऑल्सो. अल्फा वेव्स काम भी करते हैं, ठीक है? तो जैसे उठते हो ना, कभी आप उठते हो तभी तुम अल्फा वेव्स में ही होते हो. बीटा वेव्स में जैसे पढ़ाई करते हो तो दैट्स हाउ दे लुक. दीज आर बीटा वेव्स. थीटा वेव्स क्या होते हैं? ये आपकी बाद में आती हैं. थीटा वेव्स बाद में आती हैं, ये अर्ली स्टेज होती है. जैसे आप बेड पे बैठते हो, फिर धीरे धीरे लेटते हो, धीरे धीरे स्लीपी होते हो, तो बीटा से अल्फा में जाते हो, अल्फा से थीटा में जाते हो, जब आप अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप में होते हो. स्लीप की शुरू की स्टेजेस में आप जब होते हो, ठीक है, दैट इज़ योर थीटा वेव्स. दीज आर स्लो वेव्स, ठीक है? स्लो होती हैं, थोड़े थोड़े जब सोने लगते हो तो आपकी पहली स्टेज में होती हैं. ये स्लो एंड लार्ज होती हैं और ये ऐसी दिखती हैं, ठीक है? आप देख रहे हो कैसी है ये स्लो एंड लार्ज है, ठीक है? दैट्स हाउ दे लुक लाइक. दीज आर कॉल्ड थीटा वेव्स. वेव्स हमेशा ऐसे होंगे, ठीक है? जैसे आप पानी की वेव्स देखते हो, दैट्स वाई इसको नेम वेव ही रखा गया है. एंड दिस इज हाउ योर थीटा वेव्स लुक. नाउ द डीपेस्ट वन इज डेल्टा. डेल्टा इज डीपेस्ट. जितनी पढ़ा रही हूँ इतनी ही पढ़नी है, इतनी ही इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हेन यू हैव द डीपेस्ट विच इज लॉन्गेस्ट एंड स्लोएस्ट, इसका मतलब इस वेव जब आपको EEG पे देखेगी, इधर आप सबसे ज़्यादा स्लीपी होगे और सबसे ज़्यादा स्लो भी होगे, ठीक है? तो इट इज़ द डीपेस्ट बिकॉज इट इज़ लॉन्गेस्ट. और ये लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि ऐसी दिखती है. अब देखो कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है बीटा और लास्ट में डेल्टा में. यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस.
बिकॉज ये आपकी लॉन्गेस्ट होती है, यू कैन सी हाउ लॉन्ग इट इज, and slowest, because here you are in the deepest sleep of your life. You cannot be awake when you are in the delta wave. You cannot be what? You cannot be what? उठ नहीं पाओगे तुम. If someone tries to wake you up in delta waves, अगर delta waves में EG पे अगर तुम उठाने की कोई कोशिश करता है, वो सो जाएंगे पर तुम नहीं सोओगे, क्योंकि उठोगे, सॉरी, वो सो जाएंगे पर तुम नहीं उठोगे, क्योंकि तुम इतनी डीप स्लीप में होगे. तुम कितना भी उठाएं, हाँ अगर पानी वानी डालें कि बहुत कुछ करें तो ठीक है, बहुत ज़्यादा शो, बहुत ज़्यादा, तब बट इतनी डीप होती है कि यू विल नॉट वेक अप. नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू विल नॉट वेक अप. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि सबको सब कुछ समझ आ गया. आई एम अज्यूमिंग, दिस इज ऑफ कोर्स माई assumption, आई एम नॉट श्योर. लेट मी नो. नाउ स्टेज नंबर 1 ऑफ स्लीप. Stage number 1 of your sleep. Now, what is your stage number 1? Your stage number 1 is light sleep. Stage number 1 आपकी अल्फा होती है. Stage number 1 आपकी अल्फा होती है. Stage number 1 आपकी अल्फा स्लीप होती है, बिकॉज अल्फा स्लीप ऐसी स्लीप होती है, अगेन वेव होती है, सॉरी, ठीक है, ऐसी वेव होती है, अल्फा होती है, जिसमें आप, अभी मैंने डिस्कस किया, लाइट होती है और कामिंग और रिलैक्सिंग होती है. ठीक है, अब इसमें ड्राउजी होते हो. ठीक है, अभी बेड पे गए, बहुत थका हुआ दिन था आपका, यू केम टू योर बेड, यू आर ड्राउजी, यू आर स्लीपी, यू आर काम ऑल्सो. ठीक है, यू आर रिलैक्सड ऑल्सो. ठीक है, इट वॉज अ नाइस डे. योर बॉडी टेम्परेचर goes down, and you have deep sleep chances, क्योंकि अभी तक थक चुके हो, अब आपके डीप स्लीप के चांसेस हैं इसी के बाद. Okay, easy to understand. Stage 2, N2. What is N2? N2 is your stage where आपके और भी चीज़ होती हैं. आपका हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाता है. ठीक है, आपका ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाता है कभी कभी. ओके, एंड इधर आपके क्या होते हैं, स्लीप स्पेंडल्स भी इधर ही आपके होते हैं. स्लीप स्पेंडल्स भी इधर ही होते हैं, और आपके के कॉम्प्लेक्सेस भी इधर ही होते हैं. In your N2, and that's how it looks like. Okay, आपके के कॉम्प्लेक्सेस आपके 2 सेकेंड से लेस होते हैं, लेस देन 2 सेकेंड्स तक भी नहीं होते, उससे भी कम होते हैं आपके के कॉम्प्लेक्सेस. और आपके इन्वायरमेंट में ठंड ज़्यादा हो गई. ठीक है, कुछ भी चेंज हुआ, कोई भी सडन चेंज हुआ. ठीक है, कोई भी सडन चेंज हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लेता है, बिकॉज इफ द डेफिनेशन कम्स, आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. सडन चेंज, इफ देयर इज अ सडन चेंज इन योर इन्वायरमेंट में कोई भी एक ऐसा चेंज दैट इज सडन, यू विल हैव स्लीप स्पेंडल्स. व्हाट आर स्लीप स्पेंडल्स? स्लीप स्पेंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सडन चेंज होता है आपके टेम्परेचर में, आपके इन्वायरमेंट में, तब आपके स्लीप स्पेंडल्स होते हैं. ठीक है, उसकी वजह से कुछ भी आपके ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं, ब्रेन में, वो स्लीप स्पेंडल्स होते हैं. होप यू अंडरस्टूड. ब्रेन में कोई भी चेंजेस होंगे वो स्लीप स्पेंडल्स होंगे. ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है सडन होता है, वो सडन चेंज होता है, वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग स्टेज 2. Okay, I hope you understood. Now we will talk about, give me a minute, we'll talk about stage 3, N3. N का मतलब नॉन आरईएम. ठीक है, नॉन आरईएम. Now N3 क्या होता है? ठीक है,
नोट डाउन कर लो, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे नोट डाउन करने में एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। स्लो वेव सबसे स्लो होती है आपकी N3, ठीक है, सबसे स्लो होती है आपकी N3। डेल्टा होती है इसमें, ठीक है, डेल्टा होती है इसमें ऐसी 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 होती है। मैं बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, लेट मी शो यू मेरे फ़ोन पे। ऐसे अगर आपको दिख रही हो तो ठीक है, अगर आपको ऐसे दिख रही हो तो ये होती है, ठीक है। नोट्स भी चाहिए होंगे, आई विल गिव यू, डोंट वरी, अभी डोंट फोकस ऑन दैट, जो लिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है। डेल्टा होती है और आपकी लो बॉडी टेम्परेचर होता है, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर आप देखें डीप स्लीप में आपको ठंड भी लगता है, स्पेशली ठंड के टाइम पे तो और ठंड लगती है। दैट इज़ और लोएस्ट बॉडी आपका टेम्परेचर होता है, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है। डेल्टा होती है ऐसे खुली खुली खुली, ऐसे लगता है आपको कि कोई एक स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। ये आपकी स्लो होती है, इसमें डेल्टा होती है। डेल्टा हमने डिस्कस किया, डीपेस्ट वेव होती है, डीपेस्ट वेव होती है आपकी। और रिपेयर भी, अब मैंने हमने बात की थी रिस्टोरेटिव थ्योरी में कि रिपेयर होती है बॉडी, वो इसी स्टेज पे आपकी बॉडी क्या होती है, रिपेयर होती है। यही स्टेज होता है जिसमें आपकी बॉडी रिपेयर होती है और ये आपकी NREM की लास्ट होती है। इसके बाद आपकी REM आती है। बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन सब कुछ आपका क्या होता है, इसी में ही होता है। सब कुछ आपका डेल्टा में होता है और डेल्टा मतलब N3। इसके बाद ये लास्ट है NREM के, नॉन रैपिड आई मूवमेंट के। इसके बाद आपके पास आती है REM की स्लीप, जो आपकी लास्ट स्टेज होती है। बट NREM की लास्ट स्टेज तो डेल्टा वाली होती है। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वाइटल फंक्शन जो होते हैं आपके इसी में ही होते हैं। सारे वाइटल फंक्शंस बॉडी को जो रिस्टोर करते हैं, जो सेल्स डैमेज हो जाता है, मैं सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, हमने पहले पढ़ा है, ऐसा कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। तो वो इसी में ही होता है, ठीक है, डेल्टा में होता है। और N2 में आपकी कौन सी वेव्स होती हैं, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। N2 स्टेज में कौन सी होती हैं, यू टेल मी। अगर सही बताया तो अंडरस्टूड, नहीं बताया तो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। MCQ में एक और क्वेश्चन आता है, MCQ में एक और क्वेश्चन आता है कि नॉन REM स्लीप को और क्या बोला जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ REM स्लीप। एंड दिस MCQ कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल। इसको पैराडॉक्सिकल बोलते हैं क्योंकि हो तो तुम स्लीप में, पैराडॉक्सिकल मतलब वो हो रहा है बट वो हो नहीं रहा, वो उसकी है ही नहीं, वो आयरॉनिक है। पैराडॉक्सिकल क्यों बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम तो बोलते हो कि ये स्लीप का लास्ट स्टेज है, बट ये एक्चुअल में स्लीप है क्या, इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्लीप बिकॉज यू आर constantly moving around, not able to sleep properly. Even though you're sleeping, you're not sleeping. And this sentence is itself very senseless. This sentence is very senseless क्योंकि तुम बोल रहे हो तुम सो रहे हो, तुम REM का लास्ट, तुम REM की स्टेज पे हो, REM स्लीप की लास्ट स्टेज होती है। तो पैराडॉक्सिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हो तो तुम स्लीप में बट तुम स्लीप में नहीं हो। एंड दिस सेंटेंस इज इटसेल्फ अ वेरी सेंसलेस सेंटेंस बिकॉज यू आर नॉट रियली स्लीपिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली ड्रीमिंग एंड deep sleep is never there in the REM sleep. Deep sleep is never there in the REM sleep, and that's why it is called paradoxical sleep. एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी सबसे ज़्यादा रिस्टोर कब करती है, डेल्टा में क्योंकि डीप होती है, और डीप स्लीप में सारी मेमोरी सब कुछ जो हमने पढ़ा है रिस्टोरेटिव में, ठीक है, उसमें सारी हमारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है, और सारे ड्रीम्स REM में होते हैं। अभी REM को भी पढ़ेंगे हम, गिव मी अ मिनट, अभी हम किसी और के बारे में पढ़ेंगे, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आज, ठीक है, गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग राइट नाउ, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, क्विक डायग्राम बना लेते हैं, नॉट डायग्राम सॉरी, टेबल बना लेते हैं जिससे सब कुछ अभी जो पढ़ा है वो ओवर पावरिंग ना हो, हमें ओवर स्टिमुलेट ना करे। विल मेक अ डायग्राम। हम क्या करते हैं, हम ना 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट दो, आई एम फाइंडिंग द चैप्टर वेयर आई एक्सप्लेन्ड इट टू माई सेल्फ, देन विल टॉक अबाउट इट, ओके। दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी हमें लगा कि काफ़ी ईजी हो गया है, बट इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दैट वी हैव टू डिस्कस। Then we have sleep disorders to discuss. Quickly we'll discuss sleep disorders. Okay. हमें पता है हर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये डायग्राम कैन बी इम्पॉर्टेंट, कैन नॉट बी इम्पॉर्टेंट,
I think it is important, so इसलिए I am taking some time out, even though I know it's gonna take a lot of time क्योंकि table we are making, but I will discuss about it. And we have amplitude also, ठीक है? Amplitude, you know what is amplitude, I assume. So here you have alpha, that is this symbol. आपका 18 से 13 के बीच में होता है, and you have amplitude around 40 to 100. Beta has this symbol, which has hertz from 14 to 30 and amplitude 20. Easy to understand. Theta has this symbol, which has 5 to 7 hertz. Remember this, remember a few of them, right? Which are 5 to 7 hertz, and amplitude is above 50. And delta is, I think, SA, which has 2 to 4 hertz and amplitude above 50. दोनों का सेम है, दोनों का 50 से 100 है फर्स्ट का, और बीटा का 20. एंड हर्ट्स 18 to 13, 14 to 30, next 5 to 7, and next 2 to 4. It is very, very important. And that's why I am taking some time out to explain you this. It is important. Okay. And कुछ चीज़ें और समझनी है. Note down some things we have to discuss that are important, even important than the things we discuss. उससे भी important है कि जो बीटा वेव्स होती हैं, विच आर अलर्ट वेव्स, हमने पढ़ा सबसे अलर्ट होती हैं जो पहली होती है, उसके बाद अल्फा आती है, ठीक है? वो ऐसे होती हैं दिखने में. ये 13 से 30 हर्ट्ज के बीच में होती हैं. वी डिस्कस दिस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस कि ये टेम्परल एंड फ्रंटल एक्साइटमेंट दिखाती हैं, ठीक है? या आपके टेम्परल और फ्रंटल लोब में देखी जाती हैं. याद रख लो, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है. और एक और चीज़ याद रखनी है, ये लिख रही हूँ तो आपको भी नोट्स अभी बनाने शुरू कर देने चाहिए. ऑसिपिटल लोब होता है जो विजन के लिए होता है. उधर आपके अल्फा वेव्स देखी जाती हैं जिनका 18 से 13 हर्ट्ज के बीच में जो होती हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है? क्योंकि हम मेजर करते हैं फ्रिक्वेंसी, तो इसमें 8 से 13 के बीच में होती हैं. ऑसिपिटल लोब जो होता है विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिलैक्स होती हैं. ये याद रखो, वो टेम्परल एंड फ्रंटल लोब, ये आपकी ऑसिपिटल लोब, ठीक है? EEG क्या होता है? लेट्स एक्सप्लेन EEG ऑल्सो, बिकॉज वो भी आएगा. डेफिनेशन आई ऑल्सो एक्सप्लेन. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग वेव्स, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्कैल्प से, बिकॉज ये क्यों इंपॉर्टेंट है? EEG electroencephalogram is important because it records electrical activity. It records electrical activity ऑफ द ब्रेन की. तभी तो हमें पता लगता है वेव्स हैं, इनकी वजह से तो वेव्स पता लगती हैं. बट इसका रोल क्या होता है? ये क्या करती हैं? रिकॉर्ड करती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ब्रेन की, स्कैल्प से ली जाती हैं, तभी तो वेव्स पता लगती हैं. तो इट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन फ्रॉम स्कैल्प इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तभी हम मेजर करते हैं. अच्छा, ये एक्टिविटीज़ होती हैं. ऐसी आपके पास 3 होती हैं स्टडी: EEG, EMG, EOG. ओके, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं. People think these are not important, let's ignore it. No, you can't ignore it. That's the most part. You can't ignore it. बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती हैं. I'm thinking to extend this video and make it a little boring. But should I do that? I'm not sure. फिर तो बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है, पता है. एक काम करते हैं, आज कर ही लेते हैं. Sorry for the noise. स्कैल्प में इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, ठीक है? इधर आपको याद रखना है, स्कैल्प में इलेक्ट्रोड्स रखते हैं. और तभी आपकी वेव्स मेजर होती हैं. कुछ पेनफुल नहीं होता वैसे तो. ओके. REM sleep, we forgot about it. Oh my god.
How can we forget about NREM sleep? I think after that I'll have to end the video, but I'm really sad because we have a lot of things to discuss. But you cannot cover all the things in one video, Bhavi. You have to make part 2 also. And I have to make part 2 because it's very, very important. Maybe I'll make it late at night. Maybe I will not make it today, रात को. Maybe I'll make it tomorrow, but I will make it. I will make it. I will make it. ठीक है. एक और क्वेश्चन आता है MCQs में. बहुत सारी चीज़ें अभी भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें. स्लीप पैरालिसिस का एक क्वेश्चन आता है. ठीक है. स्लीप पैरालिसिस का एक क्वेश्चन आता है. स्लीप पैरालिसिस का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इट, व्हाट हैपेंस. आपको लिखा होगा ये सारी चीज़ों में से कौन सी स्लीप पैरालिसिस में होती है. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं. वॉलंटरी मसल मूवमेंट होती है. ठीक है. वॉलंटरी मसल मूवमेंट हैपेंस. आपका ओनली फोकस किस पे होता है? आपका ड्रीम पे ही होता है. आपकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है. ठीक है. सॉरी, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है आपके वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट पे, क्योंकि पैरालिसिस नाम से ही समझ आ रहा है. द स्लीप पैरालिसिस है. इट हैपेंस टू लॉट ऑफ पीपल एंड इट इज क्वाइट common and rare. I don't know. I think I've heard a lot of people saying that they suffer from sleep paralysis, but I'm not sure. What happens in sleep paralysis, you have voluntary muscles, they just do not work that much. So you have voluntary muscle decrease. Decrease, it means voluntary muscles do not work properly. I accidentally said voluntary, I wanted to say involuntary muscle movements होती है. नहीं, मुझे बोलना था कि voluntary muscle movement जो होती है वो होती ही नहीं है. सॉरी, involuntary वॉलंटरी छोड़ो, कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल डजंट मैटर. आपकी मसल मूवमेंट इसमें हो नहीं सकती. दैट्स व्हाई इट इज अ पैरालिसिस. दैट्स व्हाई इट इज अ पैरालिसिस एंड इट ओनली फोकसेस ऑन ड्रीम्स and it is quite scary. It is not a horror experience, not a paranormal experience. You have to understand what happens is that you are sleeping late at night and when you wake up you cannot do anything. You are paralyzed, right? You are paralyzed because your muscle movements are not happening. कोई सी भी मूवमेंट आपकी नहीं हो रही है. ठीक है. आपकी इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट होती है, जैसे आपकी आई मूवमेंट्स होती है, आपका डाइजेशन जो भी नॉर्मल वर्क करता है, आपके जो कंट्रोल में नहीं है वो होता है. ठीक है. मैं वो बोलने वाली थी कि इनवॉलंटरी जो होती है वो पॉसिबल है. आपकी आईज ब्लिंक करते हैं, आपको सब कुछ होता है, बट आपकी वॉलंटरी आर्म्स लेग्स मूव नहीं करती हैं, तो इसमें वॉलंटरी मसल मूवमेंट नहीं होती. इनवॉलंटरी ब्लिंकिंग जब आइज़ को करते हो, आइज़ को स्क्वेंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट जो चीज़ आपके कंट्रोल में, आपकी आर्म्स को मूव करना, आप उठ सकते हो बेड से, ये सब आप नहीं कर सकते हो. आप ना बेड से उठ सकते हो, जो पोजीशन में आप उठे हो, आपकी आइज़ देख पा रही हैं, बॉडी नहीं मूव कर पा रही, वो आप हो सकती है, वो इनवॉलंटरी होती है. बट जैसी पोजीशन में हो वैसे पोजीशन में ही रहोगे एंड दिस इज योर पैरालिसिस. हियर यू आर इन स्लीप एंड यू गॉट अ पैरालिसिस एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू मूव. So yes, blinking is possible. Every involuntary muscle movement is possible, but voluntary muscle movement is not possible. Something that is in your control. You cannot move your limbs. You cannot move your body. Right? It is not a paranormal experience, but yes, it happens and it is quite scary. And the focus is only on dream. The focus is only on dream. That is why it is important. Okay. REM sleep की रिक्वायरमेंट कब होती है और NREM स्लीप की रिक्वायरमेंट कब होती है? REM स्लीप की रिक्वायरमेंट आपको तब होती है, ठीक है, जब आपका दिन जो है वो बहुत इमोशनल गया था. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सफर्ड फ्रॉम समथिंग वेरी ट्रोमैटिक टुडे. मे बी यू हैड योर एग्जाम बट यू कुड नॉट गिव योर एग्जाम, राइट? मे बी यू हैड योर एग्जाम एंड यू कुड नॉट टेक इट प्रॉपरली. यू वर stressed about something that happened in a family. Maybe you were going somewhere and your bus did not arrive at on time and you were not able to go to your favorite trip with your friends, to your favorite destination with your friends, and it was very traumatic for you because you have been planning to go to that destination, maybe to Manali, for a very long time, to experience snow for the first time, but आपकी ट्रेन मिस हो गई या आपकी बस मिस हो गई and that's why it is very traumatic. So when something is emotional, you have REM sleep more. तो आप REM sleep में ज़्यादा रहोगे जब आपकी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इमोशनल हैं, जो बहुत ट्रोमैटिक हैं, जो हुई हैं पूरे दिन में. रात को when you will sleep, you will experience REM sleep more. When will you experience NREM sleep? When you have done something laborious, something you have done which needs a lot of hard work, which needs a lot of physical demand. नॉट इमोशनल, फिजिकल. तो इधर आपके ड्रीम्स नहीं होंगे, आप बहुत ही डीप स्लीप में सोगे, क्योंकि व्हेन यू नोटिस, जब आप बहुत थक के आते हैं, व्हेन यू गो टू जिम एंड व्हेन यू कम बैक होम,
You go to your bed and you sleep. You do not even realize. You not call your girlfriend. She will do kalesh. You did not do anything. You just went to your bed and slept because it was NREM. It was a deep sleep and it was physically demanding to you. When something is emotionally demanding, REM. When something is physical demanding, NREM. Something that is traumatic, something that is so stressful. आपको हमेशा ड्रीम्स आएंगे उस बारे में, या कोई भी ड्रीम्स आपको इन जनरल REM में आएंगे, तभी you spend a lot of day in REM, not day, sorry, spend most of a night sleep, most of a night in REM when you have an emotional event, right? Something physical in REM, because इसका एक reason होता है. अभी I explained you the reason. You do not have to do rectification. You have to understand the reason behind it. क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद you do not have a lot of things in your mind, right? You have only physical thing जो आपने किया, अपने legs किया, कुछ नहीं किया, पूरा दिन अच्छा था. तो आपको इतना ज़्यादा REM में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा आप REM में टाइम स्पेंड नहीं करोगे. कुछ बहुत इमोशनल है तो नींद नहीं अच्छे से आएगी, क्योंकि इमोशनल इवेंट था, बहुत ट्रोमेटिक इवेंट था, आपके बहुत ज़्यादा उसी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, वही चीज़ें जो आपके साथ, उसी के आपको वही आएंगे, मेमोरीज वापस आएंगी, आपको ऐसे फ्लैशबैक्स आएंगे, अच्छा मैं वहाँ पे क्या था, मेरा वो अच्छा इवेंट नहीं गया, मैं एम्बेरस हो गया सबके आगे, ठीक है, आपको यही आएंगी. तो इसलिए आपको डीप स्लीप तो पक्का नहीं आ सकते. एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड इट. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, यू लिंक इट, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड देन यू स्टडी इट, एंड देन आपको याद भी रहेगा, ठीक है, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो अगर फिजिकल डिमांडिंग है तो NREM, अगर इमोशनल डिमांडिंग है तो REM. ऐसे यू याद करते हो, ठीक है, ऐसे आपको याद करना होता है. अगर आप रट्टा करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, दैट्स हाउ यू डू इट. REM रीबाउंड भी होता है एक, ये भी टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये भी टर्म होती हैं. REM रीबाउंड भी होता है, ठीक है. अभी REM के बारे में क्या क्या स्टडी किया हमने, REM के बारे में स्टडी की, ये तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक है. हमने REM के बारे में स्टडी, ये भी आपके REM में ही होता है, ठीक है. हमने REM के बारे में स्टडी किया कि इमोशनल होता है, NREM के बारे में थोड़ा पढ़ लिया कि फिजिकल डिमांडिंग होता है, ठीक है. हम अभी REM बाउंड के बारे में पढ़ेंगे. REM लास्ट स्टेज होता है स्लीप का, ये भी आप लिख लो, लास्ट स्टेज होता है, इसको हम स्टेज 4 भी कहते हैं, ठीक है. लास्ट स्टेज होता है आपकी स्लीप का, और इसमें हमारी बीटा होती है, ठीक है. और REM रीबाउंड क्या होता है, जब आप REM डिप्राइव्ड, आपको एकदम बिल्कुल भी ड्रीम्स नहीं आए, आप REM डिप्राइव्ड है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, आपकी रैपिड आई मूवमेंट में जो भी पढ़ा है REM के बारे में, कुछ भी नहीं हुआ, आप NREM में थे, ठीक है. आप NREM में थे. तो अगर आपका REM स्लीप का लॉस हो रहा है, REM स्लीप का लॉस हो रहा है, REM स्लीप का लॉस हो रहा है, तो नेक्स्ट डे यू कॉम्पनसेट. नेक्स्ट डे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे REM स्लीप में, बिकॉज आपने उस दिन नहीं किया, तो REM रीबाउंड होता है, ठीक है, कि चलो आज नहीं इतना REM था, REM कम था, नेक्स्ट डे उसको कॉम्पनसेट, ज़्यादा टाइम स्पेंड, ये आपका REM रीबाउंड होता है. सो वन डे यू वोक अप एंड यू रियलाइज मेरे को ड्रीम्स नहीं कुछ भी था, तो आप नेक्स्ट उसको कंपनसेट करते हो. इस ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं नहीं आपको देना चाहती, ज़्यादा आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती. इतना ही बहुत था, इतना ही अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखनी है टॉपिक्स को. दैट्स हाउ यू मेमोराइज इट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर was explained to you, whatever was explained to you. I hope you understood the diagrams that I made, the tables that I made. I hope you understood. ठीक है. Sleep disorders we will study in the next video. We will study about sleep disorders. We will study about some brain scanning techniques, some brain को पढ़ने वाली, brain के parts को समझने वाली techniques. We will also study. One of them was magnetic, नहीं कुछ और था, वो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम था, ठीक है. अब हम एक और चीज़ के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर इन द नेक्स्ट वीडियो द फ्यू मोर थिंग्स टू डिस्कस. एक और लास्ट कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस एंड देन यू कैन गो एंड स्लीप. बट आई होप यू डोंट स्लीप, आई होप यू स्टडी, आई होप यू स्टडी, ठीक है. वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड प्राउड ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई डोंट थिंक सो अभी अपलोड हो पाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, बट इट्स ओके, इट्स ओके. ऑल आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, राइट. EEG वी स्टार्टेड, वी विल स्टडी मोर. कल हम बहुत ज़्यादा ब्रेन इमेजिंग की टेक्निक्स भी होती हैं, ब्रेन इमेजेस कैसे निकालते हैं, उसके पार्ट को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है.
अभी जितना एक्सप्लेन, डू अ क्विक रिविजन, वॉच दिस वीडियो, नोट्स को एक बार देख लो, बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर. EMGs, electro, hold on, just give me a minute. I forgot the spellings and I was like, अच्छा, electromyograph, electromyograph, ELECTRO, myograph, EMG. Can you please check अगर ये gram है, graph है? I think it is graph. Hold on. Give me a minute again. I'm sorry, I'm taking a lot of time, but it is important. It is important. And आपको page turning की भी आवाज़ आ रही होगी because I made notes, and when I used to study CUT PG, I used to study from these notes, and these are very special to me. They're very, very special to me. We will also talk about biopsychology. हम कल ऐसे कुछ भी random topic के बारे में study करेंगे जो काफ़ी important है, जिसकी weightage बहुत ज़्यादा है. But इसको complete करने के बाद of course we will discuss about it. तो ये EMG जो होता है ना, एक टेक्निक होती है जो हम आगे भी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. ये अभी पढ़ लो और EEG समझ लो. EEG में तो स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, वो तो आपको आ गया होगा समझ. और उसी से ही हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टडी करते हैं. इससे क्या करते हैं हम Give me a minute, please. हम इसे evaluate करते हैं और record करते हैं. The activation. तो राइटिंग को ना क्या हो जाता है मुझे समझ ही नहीं आती. एक्टिवेशन सिग्नल ऑफ मसल्स. अभी इसका क्या मतलब होता है ये तो कुछ समझ ही नहीं आया. इट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है. एंड इन सिंपल वर्ड्स, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है रेस्ट पे, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उसको स्टडी करने के लिए. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ एट रेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो हमारी स्टडीज़ होती है कि अगर हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और अगर मसल्स रेस्ट पे हैं तो जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है उसका क्या रोल होता है, वो यही करती है, ठीक है. अगर कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है उसको भी डिटेक्ट करने में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें हम बेसिकली देखते हैं नर्व का स्टिमुलेशन क्या है टू मसल्स. नर्व स्टिमुलेशन ऑफ द मसल. तो नर्व का जो स्टिमुलेशन है, ठीक है, जो मसल में जो नर्व का स्टिमुलेशन है ब्रेन के अंदर, ठीक है, वो आपको इम्पॉर्टेंट है, उसी में ही आपका होता है, ठीक है. तो ये आपके नर्व और मसल्स डिसऑर्डर को स्टडी करती है. अगर आपको कोई नर्व का डिसऑर्डर है और कोई मसल डिसऑर्डर है तो उसको स्टडी करने के लिए ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इसको. अगर मसल का डिसऑर्डर है, कोई नर्व का डिसऑर्डर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखते हैं आपकी जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और जब रेस्ट हो रही है तो उसमें आपका क्या हो रहा है, नर्व के क्या स्टिमुलेशन हो रही है मसल्स के अंदर. एंड दैट्स ऑल इट इज़. दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. तो हमें पता लगता है कि क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, कौन सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं. कब जनरेट होता है, जब हमारी मसल्स जो है कंट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, एंड इसी से ही हम डिसऑर्डर्स भी पता कर लेते हैं. दैट्स ऑल इट इज़. If you remember half of it also in exams, ये अलग से आएगा तो you will be able to answer. And that's it for now. It was a long session, but I hope you understood everything. Iska, if you remember, 80% also. And if you keep on revising multiple choice questions, you will get good marks. But you have to practice, and I hope I explained you everything. Thank you for watching.
थैंक यू, बाय।